Welcome to RP classes. Today we will be doing the second exercise 7.2 from 12th HSC book Maths 2 का 7th chapter probability distribution. So let us continue with the second exercise. Basically this exercise deals with the continuous random variable. Continuous random variable. और यहाँ पर हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था, तो अब हम आगे की तरफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे. सो क्वेश्चन नंबर 4 हियर. लेट्स स्टार्ट. फाइंड k if the following function represents PDF, that is probability density function. PDF होने के लिए क्या जरूरी कंडीशंस है? probability density function होने के लिए जरूरी क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है f of x should be always positive. f of x should be always नॉन नेगेटिव. दूसरा है इंटीग्रेशन of f of x over the given interval. अब ये इंटरवल a to b हो सकता है या फिर उसको मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक भी बोल सकता हूँ. f of x dx should be equal to 1. ये प्रॉपर्टीज है probability density function के लिए. probability density function is basically the concept for continuous random variable. ये हमने previous lectures में देखा है और ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो चलिए देखते हैं 4 में का फाइंड आउट k बोला है उन्होंने. f of x is equal to 4 सब पार्ट 1 f of x is equal to kx for 0 less than x less than 2. Okay, and is equal to 0 otherwise. Is equal to 0 otherwise. ठीक है, ठीक है. k कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी. इसमें और एक चीज आपको पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 3/2. ये भी पूछा गया है. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर सिंस इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देयरफॉर वी विल से इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो सकता है, लेकिन वो तो एक्चुअली डिफाइन किया है 0 to 2. तो आंसर इट इज फ्रॉम 0 to 2 of f of x dx is equal to 1. That means integral from 0 to 2 f of x is kx into dx is equal to 1. Let us solve this now. ये बनेगा k x square upon 2 which is going from 0 to 2 is equal to 1. So k by 2, 2 2s are 4 is equal to 1. 2 2s are 4. So k is equal to half. K is equal to half. ये पहला आंसर आया हमारा. k is equal to half. This is our first answer. अब मुझे चाहिए probability from 1/4 less than x less than 3/2. This probability. So I'll have to write it from 1/4 से लेकर 3/2 तक. यही सेम लिमिट्स यहाँ पर लिखेंगे f of x dx. That is equal to integration kx going from 1/4 से लेकर 3/2. So 1/4 क्योंकि ये 1/4 to 3/2 इसी इंटरवल में है. So this is nothing but kx square upon 2 which is going from 1/4 से 3/2. Let us take this k by 2. K is half. Half by 2 is 1/4. I substituted for k. X square 9/4 minus 1/4 का square 1/16. So basically if I multiply this by 4 and divide this by 4, so this will become 1/4. 36 minus 1, 35/16. So the answer is 35/64. This is the probability of the required event. Required probability है ये 35/64. I hope this is clear. Please take a screenshot. Question number 4 में the 2. f of x is given like this from 0 to 1. 0 otherwise. And you have to find out this probability also. So let us say since it is PDF, therefore integral from 0 to 1
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। therefore क्या बनेगा ये इंटीग्रल के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स गोइंग फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 1। के इज आउट, ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, दिस इज 0 to 1, दिस इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो के इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बता दो मुझे। दिस विल बी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 गोइंग फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 1। सो के इंटू ये आएगा हाफ माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी क्या आएगा ये के into 3 minus 2 is 1 upon 6 is equal to 1 and therefore k is equal to 6। that is the answer। इसके बाद मुझे पहला प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी 1 upon 4 लेस देन x लेस देन हाफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/4 to हाफ into k x minus x square dx। ये k is 6, उसको बाहर निकाल दीजिए। इसका इंटीग्रेशन आएगा x square upon 2 minus x cube upon 3 going from 1 upon 4 to half। okay, that is equal to 6 into this half। अपर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। हाफ का स्क्वायर इज 1 upon 4 माइनस 1/3 इंटू हाफ का क्यूब इज 1 upon 8। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाफ इंटू 1/4 का स्क्वायर 1 upon 16 माइनस 1 upon 3 इंटू 1 upon 4 का क्यूब 1 upon 64। So this is what we get there। So that is, देखते हैं क्या आएगा। This is equal to 6 into 4 to the 8 1 upon 8। This is 1 upon 24। This is 1 upon 32 and this is minus minus plus 1 upon 190। मुझे इसका एलसीएम निकाल लेता है और 192 इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें तो टेक एलसीएम 6 into अगर 192 एलसीएम है तो मुझे इसको किसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, इसको 8 से और इसे कितना से 32 6 से है ना, -6 plus 1 ऐसा that comes out to be 32। This is 11 upon 32 would be the first answer। अभी सेकंड वाला मैंने फाइंड आउट नहीं किया। that will be the first answer। 11 upon 32 that is the first probability। take the screenshot। सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके लिए शुरू करते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन हाफ। बेसिकली एक्स के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक दिए हैं यहाँ पे। एक्स के वैल्यूज 0 to 1 तक है, तो हाफ से कम मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to हाफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब के 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होगा। सो दैट इज 6। इंटीग्रेट कर लो इसको। x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 गोइंग फ्रॉम 0 to हाफ। सो दैट इज 6 एंड दिस इज हाफ इंटू हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/3 इंटू हाफ का क्यूब इज 1 अपॉन 8। इसमें से मैं 8 कॉमन ले लूंगा। सो दिस विल बिकम 1 माइनस 1/3 दैट इज 6 upon 8 into 2/3। So that will be 3 2s and 2 2 half is the answer। So the required probability is half। Take the screenshot please।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है यहाँ पे? Let x be the amount of time for which a book is taken out of library by a randomly selected student, and suppose x has the probability density function. F of x is equal to 0.5x for 0 to 2 is value of x and is equal to 0 otherwise. मतलब जो इंटरवल है हमको दिया हुआ वो इतना ही है, that is a and b. Okay, we want to find out the probability of x less than or equal to 1, probability of x lying between 0.5 to 1.5 and probability of x greater than 1.5. Let's work it out one by one. So probability of x less than or equal to 1 जो इंटीग्रल होगा, यहाँ पे तो आपने को बताया कि ये पीडीएफ है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 0.5x 0.5x मतलब हाफ x एक्चुअली. So राइट दिस इज हाफ आउट, x का इंटीग्रेशन आएगा x square upon 2 which is going from 0 to 1. So basically this will become 1 upon 4. That is the first answer. Second, probability of x lying between, probability of x which is lying between 0.5 to 1.5 is equal to integration from 0.5 to 1.5. It is 0.5x मतलब half x dx. Half is out. Integration of x is x square upon 2. which is going from 0.5 मतलब half and 1.5 मतलब 3 by 2. So ये बनेगा 1 upon 4 x square 9 by 4 minus x square 1 by 4, that is 8 by 4 is 2. So 1 upon 4 into 2, so half is this answer. Okay. और तीसरा जो प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है वो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ यहाँ पे. लेकिन डायरेक्टली फाइंड इट आउट या तो फिर जैसे किया है यहाँ पे भाई, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5. ये इंटरवल 2 तक है. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1.5 to 2 of 0.5x dx, that is equal to half x square upon 2 going from 1.5 to 2. So this is 1 upon 4. 2 का square is 4. 3 by 2 का square is 9 by 4. So that will become 1 upon 4. 4 4 16 minus 9 is 7 upon 4. So the answer is 7 upon 16 is the last probability. Please check whether this is clear to you all and take the screenshot. Question number 6 देखते हैं. Question number 6. Suppose that x is waiting time in minutes for a bus and its PDF is given by f of x is equal to 1 upon 5. F of x is equal to 1 upon 5 for x between 0 to 5. For x is lying between 0 to 5. Okay? And is equal to 0 otherwise. Is equal to 0 otherwise. और उन्होंने बोला है कि दो find the probability that waiting time is between 1 to 3. Waiting time x is lying between 1 and 3. दूसरा, the waiting time is more than 4 minutes. Probability of x greater than 4. देखिए 5 मिनट तक का ही यहाँ पे दिया गया उन्होंने, and it's a PDF. So we say here first part, probability that the waiting time is between 1 to 3 minutes. आप यहाँ पर equal to भी कर सकते हो. Is equal to integration from 1 to 3 of f of x dx, मतलब 1 upon 5 into dx. So that is equal to 1 upon 5 is x going from 1 to 3. So this is 3 minus 1, 2 upon 5. That is the first answer. The first answer is 2 upon 5. दूसरा second part, probability that the waiting time is more than 4 minutes. X is greater than 4. टोटल 5 मिनट का ही है. 4 to 5 के लिए बीच में मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. f of x dx मतलब 1 upon 5 into dx. 1 upon 5 is out. 1 dx x going from 4 to 5. 5 minus 4, 1 upon 5. So this probability is 1 upon 5. And that's the answer. Check and take the screenshot please. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे.
Suppose error involved in making a certain measurement is continuous random variable x with probability density function f of x is equal to k into this for the value of x between -2 to +2 and 0 otherwise. ये PDF है, दिया गया है. Compute probability of x greater than 0. दूसरा probability of x lying between -1 to +1. तीसरा जो है उससे मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा. बुक में जो दिया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ दिया है. उन्होंने दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.5 लेस देन x, -0.5 लेस देन x और x ग्रेटर देन 0.5 और x ग्रेटर देन 0.5. तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको चेंज करना है आपको. क्या चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूँ. ये चेंज करना है आपको इसको लिखना है x लेस देन -0.5. This is the change that you have to make. Please make this change ताकि हम इसको सॉल्व कर सके. चलिए शुरू करते हैं. तो पहले तो मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने k यहाँ पे दिया नहीं है, isn't it? So to start with, I'll find out what is k. So since it is PDF, therefore integration from -infinity to +infinity, जो कि यहाँ पर होगा -2 to +2 f of x dx k into 4 minus x square dx is equal to 1. चलिए सॉल्व करते हैं. k is out. This will be 4x minus x cube upon 3 going from -2 to +2 is equal to 1. k. चलिए यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं. 4 to the 8 minus 2 का cube 8 upon 3. Lower limit 4 to the 8 that is -8 minus -2 का cube is minus plus होगा 8 upon 3 is equal to 1. When I open the bracket ये बनेगा 8 plus 8 16 minus -8 by 3 is -16 upon 3 is equal to 1. So k into 16 k आएगा 1 minus 1 by 3 is 2 by 3 is 1. Therefore k is equal to 3 upon 32. k is equal to 3 upon 32. That is the first part of this question. जो कि उन्होंने बोला नहीं वहाँ पे, लेकिन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगला पार्ट देखते हैं. यहाँ पे हमें पहले प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी. सो आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब x इज बिटवीन 0 to 2. तो इंटीग्रेशन 0 to 2 k जो बाहर आएगा 4 minus x square का इंटीग्रेशन dx. k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा 3 upon 32 और ये आएगा 4x minus x cube upon 3 going from 0 to 2. लोअर लिमिट में तो ये दोनों चले गए. So this is 3 upon 32. 4 to the 8 minus 2 का क्यूब 8 upon 3. चलिए इसमें से 8 बाहर आएगा. So 3 into 8 upon 32. यहाँ पर आएगा 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3. So this probability is 8 4s and 2 2s and 3 3 गया. So half is this first answer. पहला आंसर आ गया half. टेक द स्क्रीनशॉट ताकि हम बाकी के दो पार्ट भी सॉल्व कर सकें. वैसे यहाँ पर हमने k का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है. k is 3 by 32. फर्स्ट आंसर आया हमारा हाफ. अब हम बाकी के दो आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं. उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. Let's go for the next part of the question, second part. Probability of x lying between -1 to +1. -1 to +1 मतलब ये इंटीग्रेशन जो होगा वो -1 से +1 तक होगा. k is 3 upon 32 4 minus x square into dx. ये बन जाएगा 3 upon 32 और ये क्या आएगा. This will be 4x minus x cube upon 3 going from -1 to +1. चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. दिस इज 3 upon 32. यह आएगा 4 minus 1 by 3 minus 4 minus का क्यूब माइनस ही आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1 by 3. So that will give you about 3 upon 32 into 4 plus 4 8 minus 1 by 3 minus 1 by 3 minus 2 by 3. So this is 3 upon 32 into 24 minus 2 is 22 upon 3.
3 gets cancelled. 2 11s are 16s are. So the required probability of legs lying between +1 to -1 is equal to 11 upon 16. That is the second answer. 11 upon 16. This answer is 11 upon 16. Please check whether this is clear to you. I'll switch over to the next part of it. Any doubts about this? अगला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, कि भाई मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, दिस प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए x लेस देन 0.5 -0.5 से कम और 0.5 से ज्यादा, ये हमें चाहिए। I want the probability of x where the x is taking what values -0.5 से -2, मतलब this is -half और यहाँ से 2 तक है, half 0.5 मतलब half। I want this probability. The function is defined from -2 to +2 और मुझे ये जो शेडेड है उस पार्ट का probability चाहिए। So can I say that this is nothing but, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x lying between -0.5 to +0.5 ये होगा। That is 1 minus probability of x lying between these two is nothing but integration from -half to +half k is 3 upon 32, 4 minus x square dx. That is equal to अभी क्या आएगा, 1 minus 3 upon 32 into 4x minus x cube upon 3, which is -half to +half. That is equal to 1 minus 3 upon 32. ये क्या आएगा, 4 into half is 2, 1 upon 3, half का cube is 1 upon 8, minus 4 into -half is -2, minus half 1 3 times, minus half का cube is -1 upon 8, तो ये बनेगा +1 upon 8। तो ये आएगा 1 minus 3 upon 32 into 2 plus 2 4 और ये 1 upon 24, minus 1 upon 24 minus 1 upon 24 minus 2 upon 24, that is 1 upon 12. Okay, so that is equal to 1 minus 3 upon 32 into 48 minus 1, 47 upon 12. So this is 3 4s are 12. Okay, so ये क्या आएगा, कुल मिला के this probability is going to be, अब देखिए this is 1 minus 47 upon 8 128 minus 47, that comes out to be 81 upon 128, 81 upon 128, that is the required probability। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया है and this is the answer for the last part. Please check whether this is clear to you all and take the screenshot. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, question number 8, this is a probability density function f of x is given by this. It is defined between 0 to 4. We are supposed to find out what is cumulative distribution function of x. Cumulative distribution function of x. Cumulative distribution function of x is denoted by capital F of x. Capital F of x, and it is integral 0 to x. It is integral 0 मतलब ये लोअर लिमिट होगा, जो भी कुछ यहाँ का लोअर लिमिट, दिस इज a and b, तो इंटीग्रल a होता है, बट a is equal to 0 here, f of x dx। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। समझे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस प्रकार है। कई बार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो
अगर वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो इतना स्प्रेड नहीं होता है। समझो कि वो -2 से लेकर +2 तक कभी डिफाइन किया जाता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पर वही चीज डिफाइन की गई है 0 to 4 तक, 0 से 4 तक डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ये जो एरिया होता है दैट टोटल एरिया इज इक्वल टू 1, isn't it? तो ये 0 to 4 डिफाइन किया गया है। वो पूछ रहे कि भाई अगर x का वैल्यू यहाँ पर है इन बिटवीन, तो यहाँ तक का एरिया कितना होगा, दे आर आस्किंग। दैट इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से लेकर एक्यूमुलेट करते करते वो x के वैल्यू तक जो भी एरिया होगा, वो प्रोबेबिलिटी होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो वो CDF हमें फाइंड आउट करना है, इट इज गिवन बाय दिस। सो 0 to x तक उसको इंटीग्रेट करना है। आई होप आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, अब समझ में आ रहा है। So let us find it out now. What is the expression for f of x? They are asking. First part solution का CDF of capital X, which is equal to capital F of x, which is equal to integration from 0 to x f of x dx. Now that is equal to integration from 0 to x. F of x is x upon 8 into dx. That is equal to 1 upon 8 x square upon 2 going from 0 to x. And that will give me what is f of x. Capital F of x क्या आएगा यहाँ पे? Capital F of x will be equal to x square upon 16. That is the first answer. X square upon 16. That will be the cumulative distribution function. X square upon 16. I hope this is clear. Hello. Is this clear? First part of this is x square upon 16. दूसरा पूछा गया है find f of x at 0.5. f of x at 0.5 मतलब क्या होता है? f of x at 0.5 का मतलब होगा x के जगह पर मुझे 0.5 लिखना पड़ेगा। Second part of it, f of x at 0.5, that is f of 0.5 मतलब 0.5 का स्क्वायर, 0.5 मतलब हाफ का स्क्वायर अपॉन 16, that is equal to 1 upon 4 into 1 upon 16, that is equal to 1 upon 64. उसी तरह से उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है, they also ask us to find out f of 1.7. okay, ये 1.7 हो या 0.5 हो, ये 0 to 4 के बीच में लाई होती है, लेकिन 5 जो है वो इस 4 से बाहर है। So this is nothing but 1.7 का स्क्वायर x square upon 16, 1.7 का स्क्वायर 2.89 upon 16. So जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं, that it comes out to be 0.18. ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है कि f of 5 जो 4 से बाहर है, दिस इज आउटसाइड 4, बराबर है क्या? अगर वो बाहर है तो एक्चुअली देखिए f of 5 मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 4 के बाद 5 आएगा। नो f of 4 अगर मैं फाइंड आउट करूं, मतलब 0 से लेकर 4 तक ही मैं इंटीग्रेशन करूं यहाँ पे, जो कि मैं 4 स्क्वायर अपॉन 16 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और 4 के बाद जो भी कुछ है वो सब प्रोबेबिलिटी, मतलब f of 5 जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 f of x dx, जो कि होगा 0 to 4 f of x dx प्लस 4 to 5 f of x dx। अब मुझे अच्छे से पता है कि भाई f of x dx 0 to 4 ये जो है वो इंटीग्रल तो 1 होता है, क्योंकि f of x यहाँ पर डिफाइन किया है x by 8, तो अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी 1। और ये f of x 4 के बाद जो है वो 0 है, दिस f of x इज 0, तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, मतलब f of 5 विल बी इक्वल टू 1। प्लीज रिमेंबर, प्लीज चेक, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इज दिस ओके? ओके। Question number 9, this is a star question. They say, given the PDF of a continuous random variable x, f of x is equal to x square upon 3 between -1 to 2 and 0 otherwise. पहले तो पूछ रहे find out CDF of x, मतलब they want what is f of x, which is equal to integration 0 मतलब लोअर लिमिट जो भी कुछ होगा, यहाँ पर लोअर लिमिट -1 है,
माइनस वन टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होगा तुम्हारा सी डी एफ ऑफ एक्स। दिस विल बी ये सी डी एफ ऑफ एक्स, बराबर है क्या? ओके, तो लेट्स वर्क इट आउट। ये बन जाएगा सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट इज सी डी एफ of capital X, which is nothing but capital F of X, which is equal to integration minus 1 to plus minus 1 to x square upon 3 x square upon 3 dx. So that is equal to 1 upon 3 x cube upon 3 going from minus 1 to x. That is equal to 1 upon 9. This is x cube minus 1 का cube is minus 1, that is plus 1. So this is capital F of x. Capital F of x is equal to capital F of x is equal to x cube plus 1 upon 9. Okay. Then probability of x less than 1. Probability of x less than 1. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 मतलब होगा ये एक्चुअली अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा तो वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट माइनस 1 से लेकर प्लस 1 लेस देन 1 है ना एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। इसके साथ मैं अगर कंपेयर करूँ तो बाकी सब सेम है। दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ 1 होगा ये, एफ ऑफ 1 कैपिटल एफ ऑफ 1, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो एक्सप्रेशन है उसी में सब ये और ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक्स के जगह पर 1 आ गया, अपर लिमिट वहाँ पे चेंज हो गया, तो मुझे एफ ऑफ 1 लेना पड़ेगा। मतलब 1 के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा 1 का क्यूब इज 1 प्लस 2 अपॉन 9, दैट इज द सेकंड आंसर। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा एक्स लेस देन माइनस 2। यहाँ पे सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन माइनस 2, लेकिन माइनस 2 माइनस 1 के पहले वो डिफाइन ही नहीं किया गया है, क्योंकि माइनस 1 के पहले आएगा माइनस 2, समझे क्या? तो इसका मतलब है दिस इज एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 2 आएगा, isn't it? एंड एफ ऑफ माइनस 2 क्योंकि वहां पर कोई प्रोबेबिलिटी डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए इसका मतलब है वो माइनस 1 से लेकर माइनस 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो माइनस 1 के बाद का पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, समझे क्या? तो यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया, माइनस 1 से पहले जो है वो 0 ही है फंक्शन। सो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये कुछ नहीं आएगा, दिस इज 0। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा, x is greater than 2, probability of x greater than 2, x is greater than 2 sorry x is greater than 0 is equal to 1 minus probability of x less than 0 हम बोल सकते हैं, isn't it? That is equal to 1 minus probability of x less than 0 is nothing but f of 0, क्योंकि ये probability क्या होगा, ये probability होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 1 से लेकर 0 तक f of x dx, लेकिन इसे मैं कह सकता हूँ f of 0, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर f of 0 x के जगह पर 0 डाल दो तो 1 माइनस 1 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, दैट इज दिस प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन 1 to 2, लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन 1 to 2। तो इसे अगर मुझे सॉल्व करना है मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी of x less than 2 minus probability of x less than 1, x less than 1, no, probability of x less than 2 का मतलब होता है f of 2 minus f of 1, isn't it? f of 2 minus f of 1, तो वो क्या बन जाएगा? this will be nothing but f of 2 मतलब 2 का क्यूब 8 plus 1 9 upon 9 is 1 minus 1 plus 1 2 upon 9, so that will be 7 upon 9. So the last part is 7 upon 9. Please check whether this is clear to you all. Check if it is clear to you all. Hello. Question number 10. F of x is equal to c upon x for 1 less than x less than 3. मतलब this is the
रेंज इन विच इट इज डिफाइंड ए एंड बी। और पहले तो मैं सी फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे? कुछ नहीं, सिंस इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देयरफॉर हम ये बोलेंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, मतलब 1 से 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब सी अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब सी अब बाहर आएगा, दिस इज log x going from 1 to 3 is equal to 1. That will be nothing but c into log 3 minus log 1, but log 1 is 0, so c is equal to 1 upon log 3. c is equal to 1 upon log 3, that is the first answer. अब उन्होंने पूछा what is e of x, एवरेज वैल्यू ऑफ x, जिसको हम बोलते थे सिग्मा एक्स आई एफ आई, सॉरी सिग्मा एक्स आई पी आई, बराबर है क्या? सिग्मा एक्स आई पी आई होता है, इधर जिससे मैं यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको सिग्मा फाइनाइट वैल्यूज होंगे, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये होता है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होगा, फिर ये सिग्मा की जगह पर इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम द लिमिट 1 to 3। अब x के जगह पर x आएगा, और ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब वहां पर f ऑफ x आएगा, समझे क्या? सो ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x इंटू दिस, दैट इज x इंटू c अपॉन x dx। तो ये तो x gets cancelled, so this is simply c. c is nothing but 1 upon log 3, and integration of 1 dx is x, and x is going from 1 से 3 तक। ये क्या बन जाएगा? e of x is equal to 1 upon log 3, 2, 3 minus 1, that is 2, so this is 2 upon log 3. This is e of x. Please check whether this is clear to you. अब उसी तरह से मुझे वेरिएंस ऑफ x चाहिए। वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करते समय मुझे e of x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। देखिए e of x के लिए ये था फॉर्मूला, e of x स्क्वायर के लिए होगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई, दिस इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन वही अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो यहाँ पर बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट इज सी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स गेट्स कैंसल, c is out, x dx का integration x square upon 2, which is going from 1 to 3. So c is 1 upon log 3, and this is 3 square is 9, 9 minus 1 is 8, 8 upon 2, that is 4. So this is 4 upon log 3. This is e of x square. अब मुझे चाहिए variance of x. You know what is variance of x का formula? Variance of x का formula बोलता है e of x square माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, अगर आपको याद होगा। ये फॉर्मूला इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ई ऑफ एक्स स्क्वायर विच आई कैलकुलेटेड, दिस इज 4 अपॉन लॉग 3 माइनस ई ऑफ एक्स इज दिस, इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस इज लॉग 3 का स्क्वायर। इसमें से 4 अपॉन लॉग 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 minus 4 upon log 3, ऐसा कुछ आएगा, 1 minus 4 upon log 3, and that is nothing but 4 into log 3 minus 4 upon log 3 का square. This is the variance of x, the expression. Please check whether this is clear to you all. That is the answer. That is the end of this exercise.